السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کل فون کیے تھے، معذرت وہ میں دوسری جگہ کل بزی تھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کرم فرمائے اور خیریت سے ہیں سب؟ الحمدللہ، آپ بخیر ہیں؟ کچھ فیضیاب کرائیں عوام کو، امت کو، تاکہ امت جو ہے کہ فیضیاب ہو آپ کے ملفوظات سے۔ جی، کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ امت فیضیاب ہو جائے۔ میں اتنے بزرگ نہیں ہوں، میں اور امت کا میں رہنما بھی نہیں ہوں۔ میرے اوپر ابھی رہنمائیت کا جو ہوتا ہے تاج پہنایا نہیں گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اوپر رہنما کا جو عہدہ ہے آپ کے اوپر کافی جگتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اچھے طالب علم ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت صحیح ہے؟ اللہ کرم سب ٹھیک چل رہا ہے۔ جی، تو کافی دن کے بعد یاد کیا ہوں۔ ہاں، کافی دن بعد، بڑا مشکل ہے۔ تو کیا اجازت یہ بتائیے، جی عرب میں اگر کوئی مسجد میں چلا گیا، عرب والوں کی، جی، یہ دیوبند والوں کی مسجد میں چلا گیا تو کیا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، ارے مفتی منیب الرحمان صاحب کو کافر قرار دے رہے ہیں وہ لوگ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان؟ ہاں، کہ توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ اور دیکھیے حضرت ایک منٹ سنیے، ایک بار اگر آپ توبہ کرنا وہ اپنی جگہ، میں نہیں جانتا ہوں کہ ایک پہ یہ بھی وضاحت کر دی کہ ان کو کنہوں نے کیا، کون شخص بولے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا نا۔ مشاہد حسین ہے وہاں کا، اس نے مفتی مشاہد حسین مفتی بتاتا ہے اپنے آپ کو، مفتی مشاہد حسین صاحب شاید کہ مجھے ایسا لگا کہ میں کل یا پرسوں دیکھا تو ان کا کافی کنیکشن ان سے ہے، مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب سے۔ دعوت اسلامی والوں کا وہ دلال سمجھ لو۔ کیا دعوت اسلامی والوں کا دلال سمجھ لو اسے آپ۔ دلال؟ واٹ از دلال؟ ہاں، دعوت اسلامی والوں کی شے پہ اشارے پہ کچھ کر رہا ہوگا۔ دیکھیے حضرت، میرے پاس کوئی بھی الفاظ اگر کسی کا افسانے بولیے، خاص کر کے ہمارے سردار مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں، تو آپ ایسی نازیبانہ الفاظ مت بولیے، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ آپ کے نزدیک اگر میری بات سنیے ایک منٹ، اگر آپ کے نزدیک دعوت اسلامی والی غلط ہے تو آپ اپنے پاس رکھیے، میرے پاس مت بیان کیجیے، کیونکہ میں خود دعوت اسلامی والا ہوں۔ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے کہا ہے صاحب ان کے بارے میں کہ ان لوگوں نے کتنی بشارتیں۔ حضرت میں ان کا پروردہ ہوں، میں ان کی ابھی دیا میں پڑھ رہا ہوں، تو ان کا بس ایک ہی کہ بس وہ مبلغ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، تو جو الزام لگاتے تو صحیح تو ہے، مبلغ نہیں ہے دعوت بس مبلغ ہو گئے۔ دیکھو عجیب، میں مبلغ نہ ہونا تو یہ تھوڑی کہ وہ گمراہ ہو گئے، یعنی مسلک اعلیٰ کے مبلغ نہیں، تو ان کو آپ کیا حکم لگائیے گا؟ تو مسلک اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ بتایا ہے، جو صحابہ کرام کا جو طور طریقہ بتایا ہے، تو وہ اس کے مبلغ نہیں ہے۔ تو اب دیکھو ان کا مبلغ انہوں نے یہ کہتے ہیں، اب میں بھی صاحب نے بھی یہی کہا کہ بس اتنا ہی بولے، اس کے علاوہ کچھ تو بولے نہیں نا۔ تو یہ اسلام کے مبلغ نہیں ہوئے پھر؟ یہ کیسے بول دیں گے اسلام کے مبلغ نہیں ہوگے؟ مسلک اعلیٰ کیا ہے؟ مسئلہ کیا حالت، یہ صحابہ کرام کا جو بتایا طور طریقہ وہی ہے۔ ہاں، تو یہ اس کے مبلغ نہیں ہے دعوت اسلامی والے؟ چلو ٹھیک ہے، تو اب یہ مبلغ نہیں تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے آپ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ارے اظہری میاں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں نے مدنی چینل سے حضرت اللہ کے رسول کی آواز سنوائی کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو سلام پہنچا دیا۔ حضرت میری بات سنیے، اس کو میں نے حق مانا؟ اظہری میاں نے کہا ہے صاحب، میں نے اس کو حق نہیں مانا نا۔ تو مجھ سے آپ دوسری ٹاپک کو بات کیجیے، اس ٹاپک کو آپ بہت دن بات ہو گئی ہے، دوسری ٹاپک کے بعد ہم سے بات کیجیے۔ چلو خیر، آپ نے بولا کہ آدمی اگر پکڑے تو سب کو پکڑے، نہیں تو نہ پکڑے۔ جی حضرت ہر دم ایک ہی ٹاپک پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے بولا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، چلو خیر ٹھیک ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو ٹاپک پکڑ لو۔ تو وہی بولو کہ آپ کوئی آدمی دیوبندی کے یہاں پر جانے، دیوبند والوں نے بلایا تھا ان کو، وہ مسجد میں گئے تھے، تو اس پر مفتی مشاہد حسین نے ان کو مسلمانیت سے خارج کر دیا۔ مسلمانیت سے خارج کرنا یہ کہاں تک یہ معاملہ، مسلمانیت سے تو معاملہ، لیکن یہ ہے کہ کافی بندہ ایک ہو تو ذمہ دار ہے تو وہ کہیں جاتے نہیں، جیسے ابھی وہ جو کرنا کا آیا تھا ملعون شخص، جو یزید کو بھی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ بولتا ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ بولتا ہے، تو وہ بدکار شخص ہے، اس کو میں تو مانتا نہیں ہوں۔ وہ ان کے پاس جب وہ گیا تھا تو کافی پاکستان کے، تو بھائی وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، تو ان کو انوائٹ کیا گیا، بولے کہ میں نہیں آؤں گا۔ پھر بہت آدمی ان کی تائید کی ہے۔ تو کچھ ایسی بات ہے، وہ بندہ خود بھی مجبور ہے۔ ابھی ایران سے کوئی آیا تھا تو وہ ان سے بولا ملنے کے لیے، تو نہیں ملے وہ۔ اچھا، ارے سوری، وہ ملے وہ
पहले इनको उसमें बहुत सारी वजाहतें थी। जो खलीफे हुजूर तारिक शरिया सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब बताए कि कहीं ना कहीं मजबूरी, बहुत मजबूरी होती, मिलना पड़ता है, तो उसको हक समझ कर नहीं मिलते हैं। अब बताने, अब उनके पास जिम्मेदार क्या कहते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होगी, इसलिए मिलने गया होगा। लेकिन हम उस टाइम समझेंगे कि अगर आप कोई देवंती के पास भी गया, ये तो मजबूरी है कि जा रहे हैं, अगर वहां पर जाकर कुछ, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी झलकियां है कि भाई हाँ उनसे मुतासिर हो गया, जैसे आप शेर सराबा को देख लीजिए, ये सबको, तो बस इस पे मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। हाँ, मुफ्ती बदर आलम गए थे, सैयद सराबा, मुफ्ती निजामुद्दीन भी गए। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, अब मैं ये क्या करूँ, अब काफी मतलब इसलिए मैं उसको, ये मैं तो हुक्म लगाने वाला नहीं हूँ। ये कि मैं न उसको अच्छा कहता हूँ ना कुछ नहीं कहता, बस वो अपनी जगह है, उसके बारे में कुछ बोलता नहीं। गैर जिम्मेदार आदमी है वो। हाँ, तो उनकी बात खत्म करिए, क्योंकि वो सैयद सराबा गए। जी हजरत, मैं आपसे तो आप सैयद सराबा क्या बोलेंगे आप? अब जैसे सैयद सराबा जाने पर ये लोगों का फतवा ये होगा, फतवा रजिया के साथ है मुशाहिद हुसैन का, कि वो इस्लाम से खारिज हो गया जो सैयद सराबा गया। तो सैयद सराबा गया? हाँ, बदर आलम साहब गए ना, और मतीउर रहमान साहब भी गए। अच्छा, तो वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके नजदीक वो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान की, उनकी बात अलग है, वो अपना मौक़िफ़, आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरा तो एक हिसाब, बगैर तहकीक के किसी को काफिर नहीं कह सकते तब तक कि अकीदा कुफ्रिया ना हो जाए। जी हजरत, आप कोई आदमी बुझाओ कि कोई ऐसी जगह गया, मंदिर में गया, तो उनसे आप पूछोगे, अब उनसे पूछोगे कि आप कहला गए थे, ये तो आदमी गलत गुमान करेंगे, नहीं तो ऐसे बताया कि आप उस जगह है तो खाली जाने पर काफिर थोड़ी कहा जाएगा। काफिर नहीं, हजरत काफिर नहीं, मैं काफिर नहीं कर रहा हूँ। कम से कम आदमी को ये भी तो बताया गया है ना कि आप उस जगह मत जाओ जहाँ पे आदमी आपके बारे में गलत गुमान करे, वहाँ भी जाने से मना किया गया। तो आपको पता होगा हजरत, आपको पता होगा कि वहाँ जाने, तो फिर आप क्यों गए? अब उनको क्या जरूरियात थी, अब उनको क्या मामला था, वही जाने साहब। ऐसा तो मामला नहीं है कि बहुत दिन से मामला चले। देखो, वो जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, वो अपनी अलग मामला है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात करूँ। आप उनके बारे में क्या तफ्तीश करोगे? जो क्या कहते हैं, जब आला हज़रत ने उनको कुफ्र का फतवा लगाया, जो मलून शख्स है, जो अशरफ अली थानवी हो गया, ये सब हो गया फौला, तो उनके बारे में आप लोग तकफीर क्यों नहीं करते? मतलब क्या समझ में, उसमें आप क्या तफ्तीश करोगे आप? जैसे कि हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह, उन पर भी कुफ्र का फतवा था। कौन लगाया उन पर? जमाने को उलमा लगा, हजरत ने खुद माना है, आप पढ़ो हजरत की फतवा रजिया, उसमें उन पर कुफ्र का फतवा लगाया है। हाँ, फतवा लगाया था हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह पे, लेकिन हजरत कहा इनका मजार शरीफ कहाँ है? कहाँ मजार शरीफ है इनका? ये इनका बगदाद शरीफ के इलाके में है शायद। तो ये आला के जमाने के है? नहीं, ये तो 1200-1100 साल पहले के करीब। तो उनको कुफ्र का फतवा ये कैसे लगा दी? उस जमाने के उलमा ने, उस जमाने के उलमा ने। हजरत वही तो बात करो, उन जमाने के मौलाना लगाए तो कुछ देखे होंगे तभी तो लगाए फतवा ना। हाँ, तो आलत ने तो उनको वली मान रहे हैं, और देवबंद वाले भी वली मानते हैं ना? दोनों तावील का कहते हैं, थानवी साहब भी और आला हजरत भी। थानवी साहब मतलब ये है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी ये कहा कि उनकी आवाज जो उनके मुंह से निकली थी वो शजर तूबा के माने मानेंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दरख्त से आवाज आई थी, इन्नी अल्लाह। जी तो आपने एक पद अभी लफ्ज बोले कि थानवी साहब, तो अब साहब जो वर्ड बोल रहे तो वो एहतराम के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो काबिल एहतराम है नहीं, वो गुस्ताख तक है, तो गुस्ताख के एहतराम आप कब से करने लगे? ये देखो साहब, ये तो क्या किया जाए। हजरत देखिए, मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, आप इसमें आपको तावील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर तावील करते हैं। काजी का एहतराम कर रहा हो, जिसने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, हजरत वो गलत है, वो गलत है हजरत। अगर कोई आदमी अगर अपने बाल को बाल मुबारक कह दे, रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया। अरे हजरत आप मेरी बात सुनो ना, तो वही करो। अगर मैं इलियास की बीवी को मीठा कहूँ, बहुत मीठी है, या उसकी बेटी बहुत मीठी है, तो इनके मिर्चे लगेंगी दावत इस्लामी वालों? मेरी बात सुनो ना, तो अगर मैं कहूँ मुफ्ती समर किस कदर मीठा है, उसकी बहन कितनी मीठी होगी, तो किस कदर दावत इस्लामी वालों को बुरा लगेगा? तो फिर मीठे से क्या मुराद लेते हो आप, वो पहले बताओ। नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर, अरे तो वही बात बताओ ना पहले। की बेटी बहुत मीठी है, चलो ठीक है, आप मीठे से क्या मुराद लेते हो? वो जिसके पास कुछ भी ना हो। हम मुफ्ती समर की बेटी को कह रहे हैं। हाँ ठीक है, आप अगर चलो ठीक है, आप बोली दिए, तो उससे आप क्या मुराद देते हो वो पहले बताओ। बेटी को हम कहते हैं मीठाई, बहुत मीठी है। अब हबीब मतलब कब अब्दुल हबीब बोल दो। हाँ चलो ठीक है, तो आप वो बताओ मीठे से आप क्या मुराद लेते हो? जो वो बोले आप इससे क्या हासिल किया और क्या हासिल नहीं किया, उससे आप क्या समझे? देखो, मुहद्दिस कबीर को अपन मानते हैं कि नहीं? जब आप मानते हो? इसका रद्द किया बहुत ज्यादा। हेलो आप मानते हो? नहीं, आप क्यों नहीं मानते? आप हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब को नहीं मानते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं मानते उनकी बातों को? किन को?
मुहद्दिस कबीर की बात हो। हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब हमारे सरदार हैं, मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं उनका मुरीद हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ किया है इन लोगों का। जी। हजरत उनको रद्द किया है, ना उन पर कुफ्र का फतवा लगाया है, ना उन पर गुमराहियत का फतवा लगाया है, कुछ का ना बिदाती का फतवा लगाया, कुछ का फतवा नहीं लगाया है। तो कुछ तो रद्द तो किया है ना। तो जो गलत करेगा उस पर तो रद्द होगा ही बिल्कुल। ये भी मुफ्ती निजामुल साहब ने गलत किया तो मुफ्ती निजाम पे क्या कहते हैं उनको धोए। तो जो गलत करेगा तो वो एक गलत करना अलग होगा, एक आदमी होता है कि क्या कहते हैं पादरी जैसे होगा वो पूरा खारिज हो गया। ये तो सही कह रहे हो आप, गलत जो कहेंगे वो रद्द तो करते हैं। तो हर जो गलत करते वो गलत। इसने इलियास ने ये भी कहा था कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे। तो कोई देखो आप बेसिक बात सुनिए। नहीं ये बताओ सहाबा किराम क्या सहाबा किराम का मुजद्दिद होना जरूरी है? नहीं ये अजीब बात कर रहे वो बताया कि जैसे वो बता रहे कहा कि वो मुजद्दिद नहीं थे सहाबा किराम। अब ये तो बल्कि कोई सहाबा मुजद्दिद है ही नहीं थे। नहीं तो ये इसने ऐसा क्यों कहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, सहाबा अपने आप को सहाबा से क्यों जोड़ा? वो जोड़ा नहीं यार, वो बताया कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, वो बताया कि वो आप आला हज़रत में क्या कहते हैं हुजूर गौसे आज़म भी मुजद्दिद नहीं थे। तो ये कहने का मतलब थोड़ी कि वो अपने से क्या कहते हैं उसे कंपेयर करने लगे, ऐसा थोड़ी मामला है। ये क्यों कहा उसने? अपने आप को कहता कि मैं कुछ भी नहीं। हाँ तो वो बोल दिया, मतलब मैं समझ रहा हूँ वो बोल दिया। और तो अब मैं सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब बताइए कि आप जो मीठा लफ्ज़ बोलते हैं वो आपसे आप क्या तावील हासिल किए, क्या इसका माना, क्या मफहूम समझे, वो थोड़ा मुझे बता दीजिए। तो कम से कम इस पर जो है कुफ्र का फतवा लगाया इस लफ्ज के ऊपर। कौन नागपुर के कौन हजरत, मतलब बताइएगा तभी तो। हजरत हुसैनी मियां है, हुसैनी मियां। उनका कुछ बता दीजिए, कोई मतलब कोई पर कुफ्र का फतवा लगाया इलियास खान। तो ठीक हजरत ये मीठे तो बहुत पहले बोले थे, तो हुजूर रहमतुल्लाह अलैह थे। तो एक बात बताओ, जैसे मेरी बात सुनिए, एक बात बताओ, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मुहद्दिस कबीर की बेटी बहुत मीठी है तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? देखो मेरी बात सुनिए। नहीं आप इतना बताओ, बुरा लगेगा क्या? मेरी बात सुनिए ना तो यार, इतना बता दो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? आप तो मेरी बात तो पहले बात सुनो, मैं बता तो दो कि मैं ये कहूँ मुहद्दिस कबीर की मीठे का माना। देखो मैं मीठे का माना कुछ भी मायना ले लो, चलो आप तो बताओ अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा माना है, अगर आप अच्छा माना ले रहे हो कि भाई वो अच्छी है, पाक सीरत है, तो मैं अच्छा समझ रहा हूँ। लेकिन आप दूसरा मान लोगे तो आपके नजदीक गलत होगा। जैसे आपने ऐसा मोहम्मद लफ्ज, ऐसा मुश्तबा लफ्ज क्यों बोला जा रहा है? ये ओहो ये मुश्तबा लफ्ज है। अरे जिसमें एहतिमाल इस तरह का हो, तौहीन का या तनकीस का, तो वो सही नहीं है ना साहब। अच्छा ठीक है। आपने तो इतना पकड़ लिया है कि एक लफ्ज की वजह से दाऊद इस्लामी वाले को उसमें कितने उसकी मुबल्लिग के बेटी अम्मा सबको घसीट दिया है। एक लफ्ज की वजह से नहीं, अज़हरी मियां ने कहा, टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई के लिए वही तो मैं बोल रहा हूँ यार, अजीब पागल वाली बात। आप हुजूर तवश्शुर की एक बात तो हर बात क्यों नहीं मानते? जब हुजूर तवश्शुर ने क्या कहते हैं वो अपने आबा अजदाद के फतवे पर अमल करते हुए क्या कहते हैं जो उलमाए जो क्या कहते हैं हरामखोर उलमाए दारुल क्या कहते देवबंदियों का जो सरबराह सब है उस पर कुफ्र का फतवा लगाए, तो आप उनको काफिर क्यों नहीं मानते आप? अच्छा ये बताओ। नहीं पहले ये बताओ आप। ये बताओ कि उसमें नहीं मैं बात नहीं सुनूंगा, पहले ये बताओ। नहीं तो आप ये कहो कि मुफ्ती तवश्शुर को नहीं मानता, ना हुजूर मुहद्दिस कबीर सबको मानता हूँ। आप एक बात को मानते दूसरी बात को क्यों नहीं मानते? आपको बता रहा हूँ, एक बात मान। हाँ ठीक है बोलो। हुसामुल हरमैन। अब उसको जामिया अज़हर वाले नहीं मानते तो वो भी काफिर हो गए। जामिया अज़हर वाले नहीं मानते तो इस हिसाब से वो भी काफिर हो गए। हुसामुल हरमैन अज़हर वालों की कोई तस्दीक नहीं तो वो काफिर हो गए कि नहीं? तो फिर ये जामिया अज़हर में जो भी गया, ये अरसलान मियां गए और ये रामपुर के फैजान मियां गए, ये क्या हुए? फिर इन्होंने किसके पीछे नमाजें पढ़ी? मेरी बात सुनो ना, सुन्नियों के पीछे पढ़ी या तो फिर देवबंदी के पीछे पढ़ी, ये वहाबी के या अहले हदीस के? चारों के अलावा तो इन्होंने किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ी और जुमा भी पढ़े। मेरी बात सुनो ना तो हुसामुल हरमैन जो है, अगर ये झूठ बोलेंगे बात बनाने को कि हमने जुमा नहीं पढ़ा, हम तो कहीं और चले जाते, ये झूठ बोलेंगे जान बचाने को पब्लिक से, ये झूठ भी बोल लेते हैं लोग। अरे यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अल्लाह और रसूल के बारे में ऐसी नाज़िबाना अल्फाज बोले तो उसके बारे में आप क्या हुक्म लगाएंगे? आप तो कम से कम इतना अकल है ना। गुस्ताखी करेगा काफिर है, लेकिन गुस्ताखी साबित हो, उसकी भी ये नियत हो गुस्ताखी की, वो खुद इकरार करे। आप कोई आदमी, चलो ठीक है मैं आपको चोर बोलूंगा, आपको मैं तो अब जानी बोल दूंगा, तो आपसे मैं इससे क्या मुराद लूंगा? नहीं एक बात कि किसी के आपने क्या कहते हैं फर्ज को देखा है जिससे मैं जानी बोलूंगा, ये भी जानी का माना में, लेकिन मैं जानी जो अवाम में मशहूर उसको किसको जानी कहा जाता है? फिर ये फुकाहा ने जो लिखा है इसका क्या मतलब है कि एक किसी की बात के 100 मतलब निकलते हो, 99 कुफ्र पर जाते हो एक इस्लाम की तरफ?
देखिए तो उसे वो काफिर अलग न बात है, कहो। लेकिन ये देखिए वो ये अलग ये जो देखिए ताबीर मेरी बात, निकल सकती हो, अगर ताबीर एक मिनट बस, नहीं तो इसका क्या मतलब है? 100 मतलब निकलते हो, 99 कुफर पर एक मिनट जाते एक हो। मिनट एक मिनट, इस्माइल जहरवी के बारे में हुजूर आला ने कुछ बोले हैं? काफिर नहीं कहा ना? नहीं बोला ना? हाँ नहीं कहा। क्योंकि पता है कि हुजूर आला के जमाने में किसी ने बोला कि ये तौबा कर लिए थे, हाँ तफ्तीश किए, सुनने में आया तो हुजूर आला वहाँ पे मौकूफ हो गए। सही तो बात। बताइए हुजूर आला के पास इतने बड़े वो मुजद्दिद थे दौर के जमाने के, क्या इस पर तफ्तीश नहीं करते? उन पर कुफ्र का फतवा कैसे लगा दिए? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आप उनको, आप अपना मरकज किसको मानते हो? अब उसको जब काफिर नहीं मानते हो, क्या कहते हो, उलमाए देवबंद के जो भी बड़े बड़े, हाँ हाँ तो बिल्कुल। उसको आप उसको काफिर नहीं मानते हो, फिर आप उसको मुसलमान कैसे मानते हो? किस आप कौन से पीर की पैरवी कर रहे हो? कौन से मरकज की पैरवी कर रहे हो आप लोग? वो बता दो कम से कम ना, तब कम से उसकी तफ्तीश करूंगा। नहीं मैं आपसे सवाल नहीं करता हूँ। नहीं ना, तो मेरे सवाल का जवाब दे तभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना, कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो मैं दीजिए वही आप। तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कौन से मसलक की पैरवी करते हो। जी जी हाँ, आप बताओ। जैसे निकाह हो रहा है कहीं और देवबंदी गवाह है, देवबंदी ही वकील है, देवबंदी निकाह पढ़ा रहा है, हाँ तब उस लड़की का लड़के का निकाह हुआ कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा निकाह। नहीं होगा। हाँ, निकाह पढ़ाने वाला उस देवबंदी, तो उसके निकाह कैसे होगा? लड़का ही जो है पूरा अपना मामला है, आपने पूरा कुछ, लड़की लेकिन बरेली भी है। अच्छा मान लो लड़की बरेली है और लड़का हाँ देवबंदी है, हाँ वो गवाह भी देवबंदी है, निकाह पढ़ाने वाला भी देवबंदी, वकील भी देवबंदी, तो निकाह तब होगा तो कि? निकाह बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा निकाह नहीं होगा तो फिर उससे जो औलाद होगी वो क्या होगी? बिल्कुल वही होगा जो आप सोच रहे हो। क्या? अरे को अब क्या होगा जब निकाह नहीं होगा? जब निकाह से जो दो आदमी मिलेंगे, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वलद ज़िना कहेंगे। तो अब जो अरब में हो रहा है ये जो निकाह हो रहा है तो निकाह ही नहीं हो रहा, वहाँ तो सब तो वहाबी हैं। तो बता दे रहा हूँ, वलद ज़िना का मतलब बता दो, उनकी बदकारी बता देता हूँ कि अभी फिलहाल हुआ है, उसकी मैं कारनामे बताऊँ। वलद ज़िना जो नहीं होता है, अरब जो में कौन से, हद नहीं अरब में कौन से मसले के हालत वाले गवाह बनते हैं, कौन से नहीं नहीं रोगी नहीं, गवाह बनते हैं? मैं अरब वाले मक्का शरीफ मदीना शरीफ में तो सब वहाबी गवाह बनते हैं, वही निकाह हजरत वही पढ़ाते हैं, वाली बोल वही दिया आप, गवाह वही बनते हैं, वाली वही बात वकील बोल। बनते हैं। तो मेरी बात सुनो ना, मैं अरब वाले को, मैं हर वो शख्स को अगर मुतलकन बोला जाए, देखो मुतलकन अगर देवबंदी की तरफ अगर कुफ्रिया को बोला जाए तो वो नहीं तो मुतलकन जो होता है वो वो सब तो पे ऐड किया मसले जाता की है। हालत को मानते नहीं अरब वाले। तुम वो आप किसको ना मसले के सहाबा को माने, मसले के हालत को तो मैं फिर कहाँ बोला मुफ्ती मानने के लिए? आप शमशाद भी मत मानो घोसी ना। साहब ने कहा था ना कि जो मसले की हालत को नहीं मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे। तो मसले के आला हज़रत से मानने का मतलब क्या कि मसले के आला हज़रत ने जो सहाबा कराम की जो तौर तरीका बताया उसको मानना, इस हाँ तो, दौर में उसी को मसले के आलत कहा तो जाता है। उन्होंने कहा ना कि जो मसले की हालत को नहीं मानेगा मुझे हम्म, मुसलमान नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये तौर तरीका मसले के हालात का नारा अभी लगा है 50 साल पहले। कितना? 50 साल पहले। 50 साल के आला का वो क्या कहते नहीं हैं, वफात मुफ्ती के 100 आजम साल के हो गए। जमाने में नहीं लगता था ये नारा शायद। किनके जमाने में? मुफ्ती आजम के जमाने में। तो आप शायद क्यों बोले? आप ये शायद मतलब आपको कंफर्म बोलना चाहिए, उसमें आपको खुद ही शक है। हाँ तो शक है मुझे, तो लेकिन आप शक वाली बात क्यों बोल रहे हैं? शक की बात तो आपको बोलना लगता ही चाहिए है था। कि उनके जमाने में नहीं लगता था ये नारा। कैसे आपको लगता? मुझे लगता है कि लग रहा है, क्योंकि लगता। तफसीर साहब ने, मौलाना तफसीर अहमद साहब ने लिखा है तो ठीक है कि, बरेलवी। हाँ हाँ उन्होंने लिखा कि किसी ने लिख दिया उलमाए बरेली, तो आपने मना किया कि उलमाए बरेली मत लिखा करो, उलमाए अहले सुन्नत लिखा करो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि मसले के हाल का नारा भी नहीं लगाया हजरत हुआ। आप इससे आप देखो, आपने इसमें इस्तेदलाल करने लगा ना, वो अपनी तरफ से आप क्यास करने लगे, तो मैं बोले आप इसमें क्यास कर रहे हैं, इसमें क्यास कर लिया तो आप नहीं, हर बात अब में आपने कभी कहा हुजूर कि मोहद्दिस देवबंदी अगर निकाह पढ़ा रहा, देवबंदी गवाह है तो निकाह नहीं होगा। बिल्कुल निकाह होगी। तो अब अरब में तो कोई ऐसा मामला है नहीं कि वहाँ पर देवबंदी गवाह न बनते हो, देवबंदी वकील न बनते हो, देवबंदी तो काजी न हो। हजरत उससे बड़ा बदकार कौन शख्स होगा? बदकार मतलब कि मैं उसको वलद ज़िना नहीं बन रहा हूँ, कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहते हैं, ये रोजा के सिर्फ करके कोई आदमी नात शरीफ पढ़ रहा है तो उसको बोल रहे गाना गा रहा है, उस पर झूठा इल्जाम लगाना, उसको आप उस शख्स को क्या मानोगे? कौन ने कहा ऐसा? हाँ? ये तो मुफ्ती शेर यार ने कह दिया अभी शब्बीर बरकाती के बारे में कि ये क्या होता है। बिल्कुल शब्बीर बरकाती हराम खोर है, वो बहुत बड़ा हराम खोर, उनको नात पढ़ने का ढंग भी नहीं मालूम है। तो बताओ मुफ्ती शेर यार ने टोका कि नहीं टोका इंडिया में? बिल्कुल टोका, गलती है, बिल्कुल टोकेंगे, वो तो बहुत बड़ा हराम खोर का। असद इकबाल, हाँ असद इकबाल बहुत अच्छा है, वो बताइए कहाँ घुस पास करते, बताइए तो एक भी। और अली फैजी है मोहम्मद अली फैजी, अली फैजी अभी गलत कर दिए वो साहब, क्या कहते हैं, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में उन्होंने मासूमियत, लफ्ज़ मासूमियत को मंसूब कर दिया, तो वो गलत किया। तो वो तो उसमें शबात हुसैन भी तो बैठे थे, वो कौन? वही करो, मैं देखो वो सैयद हो या कोई भी हो, गलत है तो गलत है।
अरे वो तो सैयद कहाँ है, वो तो ऐसे ही हो। तो आपने उनकी सियादत कैसे खत्म कर दी? आपके पास कौन सी सनद है? ये मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी ने कहा है, वो सैयद। अरे वो इश्तियाकुल कादरी वही को हुजूर आला, हम देखो हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। हुजूर आला हज़रत जो बोले हैं, अगर वो अपने आप को सैयद कह रहे तो हम उनको सैयद से खारिज नहीं करेंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इश्तियाकुल कादरी को जानते हो आप, दिल्ली वाले को? कौन इश्तियाकुल कादरी कौन है हम नहीं जानते उनके। अभी छोटा छोटा की बात है, बड़े बड़े के नाम लीजिए ना आप। अच्छा साहब, अच्छा ये क्या कहते हैं, ये मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना। मकराना उकराना वो तो आप देखिए, आप मकराना की बात कर रहे हैं तो मकराना कुछ बात अच्छी लगती है, वो कड़वी बात बोलते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बाहर हो जाते हैं। हाँ, उसका पता नहीं चलता सुन्नी है देवबंदी है क्या है कि नहीं, मतलब वो है क्या, सुन्नी है कि देवबंदी? जी जी, आप आ रहे हो, चल ठीक है, आपको पता नहीं चलता, वो अपना आपको आप क्या कहते हैं? नहीं, मशकूक आदमी है वो, कुछ चल सुन्नियों ठीक में है रह के वो जी 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 वो सुन्नियों में रह के सुन्नियों की जड़ें काट रहा है जी बरेली जी जी, हजरत वो मशकूक है। तो क्या वो देवबंदियों के जो थोड़ा उलमा थोड़ा जिनके वो आला हज़रत का नाम भी लेता रहता है ताकि लोग शक न समझे, वो बहुत जी ठीक है चालाक ठीक है आदमी है जी शमसुद्दीन। हाँ हाँ, जो चालाक आदमी, वो चालाक ऐसे आदमी चालाक ही रहता है। यानी वो तुम बरेलियों को खूब धो रहा है इनमें रह के ताकि जी जी लोगों की हजरत धुलाई करूँ। जी हजरत, वो मैं समझ रहा हूँ वो कि दिखाने को आप, आला हज़रत कहता है ताकि लोग मुझे कट्टर बरेली समझे। चलो ठीक है, तो आप क्या शमसुद्दीन मकराना से आप कभी फोन करके पूछ लीजिए, क्या वो जिन पे आला हजरत ने और आलत के ज़माने के उलमाए हरमैन शरीफैन ने, उलमाए हिंद ने भी जो कुफ्र का फतवा लगाया है, ये जो हराम खोर 3-4 है, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो साहब, हजरत हुसैन मंसूर हल्लाज पर भी कुफर का फतवा लगा है और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर मुहद्दिस कबीर ने कुफर का फतवा लगाया। तो आप हुजूर काफिर मुहद्दिस मान? कबीर साहब ने, आप मैं उस दिन भी बोला कि हुजूर मुहद्दिस कबीर तक मामला नहीं है, हुजूर मुफ्ती आसिम हिंद, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अशतुल कादरी, हुजूर शारी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ताज शरिया, अब आकर हुजूर मुहद्दिस कबीर पर रह गया। ये मामला चलते रहेगा। नहीं, किसने कुफर का फतवा लगाया? मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी। ये बहुत दिन से मामला वही बोला कि ये तो हुजूर आप मुफ्ती आसिम हिंद, काफिर मानते हो क्या मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को? हमारे बुजुर्ग बोल दिया, हाँ बिल्कुल मानता हूँ। क्या मानते हो? हमारे बुजुर्ग जब उनको बोल दे काफिर, तो हम काफिर मानते हैं उनको, मुफ्ती कुफर का गुलाम फतवा मोहम्मद लगा। नागपुरी को? हाँ बिल्कुल। और ये तो मुफ्ती आजम के खलीफा थे। अरे वही मैं बोलूँगा, खलीफा होना बहुत बड़ी बात नहीं भाई। खलीफा होना ये थोड़ी कि अरे मतलब भाई, कि आप जो मुफ्ती आजम हिंद का खलीफा अरे मायने यार, रखता है यार। तो वही आप वही तो करो, आप मुफ्ती आजम मुफ्ती बोल रहे हो, तो कौन सा ये जो जिनका बहुत आदमी मुनाजिर कहते हैं, मुफ्ती मुतीउर रहमान, वो काले सही सराबा चल गए। वो क्या कहते हैं, नसीम मिल्लत कौन फालतू का है, झारखंड में वो का उनकी ईमान साबित करने चल गए। हाँ, मुसलमान साबित करे आए मुफ्ती मुतीमान उनको। क्यों ईमान साबित करे? तो आप ये मुफ्ती क्या कहते हैं, अब जिन पे भी कुफ्र का फतवा लगाए, हुजूर ताज शरिया, ये सब इसलिए होता है आदमी से रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको जन्नत दे, तो हम उनकी पैरवी करते हैं। ये मुतीर वो रहमान ने, हाँ, ये तो बड़ा अजीब ड्रामा नहीं तो करा आप है। बोल, हजरत मैं वो कह रहा हूँ कि आप ना हमारे जो भी बड़े बड़े उलमा है, हमारे जो कायदीन है, वो किसी वैसे कुफर का फतवा नहीं लगाते हैं, वो देखते हैं उसके बाद ही लगाते हैं। लेकिन ये मुतीर रहमान ने कैसे मुसलमान बना दिया नसीब मिल्लत? तो देखिए, तो आप वही आप फिर करो ना, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या, अगर आपको देखना है, मुरीद भी देखना है, खलीफा भी देखना है। ये मोतबर आदमी नहीं है मुतीर रहमान। हजरत मेरी बात सुनो ना, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के करामत को देखना है, हुजूर मुफ्ती आज़म के मुरीद को, खलीफा को देखना है, तो इस दौर में पूरे हिंदुस्तान में हुजूर मुहद्दिस कबीर ताना एक शख्सियत जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की शक्ल में वो पाए जाते हैं। उनकी लगती है कि हाँ झलकिया है वो। बाकी न मुफ्ती रहमान अगर सही होते हैं तो उनकी ईमान साबित कैसे करते हैं? वो अपने क्या कहते हैं, पीर साहब की क्या कहते हैं, वो मुखालिफत कर दी है, वो कैसे मतलब मुरीद है? हाँ, ये तो पैसा ले ला के जो भी करा हुआ है लोगों ने। नहीं तो आप फिर आप वही फेड करो ना, ये मुरीद होना, ये और खलीफा उसी होना, में वो ये मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी बैठा हुआ है। अरे कलीमी हो या भलीमी हो, कोई उसको मैं, वो अपनी जगह है। तो अब ये हर जगह ये निस्बत नहीं निखेदा कि अब कभी कभी होता है कि निस्बत से भी ना आदमी हर जगह शे मुमताज नहीं होता है निस्बत अच्छा, से। कलीमी भी कुछ हट चुका है मामला उसका। तो अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अब उसके बारे में जानते होंगे ना। किसके? वो एक मुनाफिक किस्म का आदमी था ना, क्या नाम था, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक। हाँ 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 उन्हीं का मामला था ना, उनके या कोई मुनाफिक किस्म मुनाफिक था वो, हाँ हाँ अब्दुल्ला बिन उबई गालिबन। तो वो इंतकाल कर गया, और उनके बेटा जो सहाबी रसूल थे, वो क्या बोले कि अल्लाह के रसूल, हमारे ऐसी सिखाइश है, हमारे अबू वसीयत के कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमीज़ मुबारक है वो उनके कफरे में रखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कफरे उनको दी, लेकिन अल्लाह ने क्या बोला कि ए मेरे हबीब, हमने आपके जो कमीज़ मुबारक उनसे हम तमाम बरकत होते हैं, जो भी खूबियां हम सब निकाल दिए। हाँ हाँ तो ये देना मतलब माने न रखता है। हाँ, कलीमी तो मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी भी मुफ्ती करीम को बोलो या मुतीउर रहमान को बोलो, ये सब अपनी जगह है, ये मोतबर नहीं मेरे नजदीक। जो आला से हटेगा ना तो वो फिर चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी पहले कट्टर था, अब नहीं रहा।
था ना, वही तो कोई सब भटक जाता है ना, था वो ना होता है, जो बरेली से सही से जुड़ा रहेगा वही सही रहेगा। हाँ, बरेली से कट गया मुतीर ये कलीमी। और आप गार्जियन है, हाँ, अल्लाह का सब ठीक तो है। फिर अल्लाह करम है, तो फिर आप उनकी तकफीर क्यों नहीं कर रहे हैं? किनकी? कैसे हम समझ गए कि आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? अब देखो कलीमी जो है इसने भी ये अहमद पटेल गुजरात जो है देवबंदी के चक्कर, देवबंदी के इशारे पे इसने हज किया था, देवबंदी चलो के इशारे पर हंस क्या था वो मत करो, आप फिर आप मरकज उसकी कैसे मारे? उसने हेल्प की थी, यानी अहमद पटेल है ना गुजरात के जो देवबंदी थे कांग्रेस के लीडर। चलो कोई भी अहमद पटेल हो भटेल हो वो बात नहीं, तो आप ये उसको मरकज कलीमी कैसे जो मान है रहे हैं? ये कैसे अमीर अरे शरीयत यार बन गया आप बिहार में। बार बार हजरत आप काहल अमीन शरीयत वो कुछ भी वो उसको खत्म करिए ना मामला। आप ना कभी मुफ्ती रहमान पहले कलीमी पर दोनों को खत्म करिए ना मामला। हाँ, अब खत्म इसमें करो इन लोगों का यार, ये क्या करें, इन लोगों ने चक्कर में डाल रखा मुसलमानों को। आपको चक्कर में डाल दो फिर पर्दा फाश होगा ना। उनका बरेली से कोई ताल्लुक है? आप किसका? उन दोनों का बरेली से ताल्लुक है? कट गया? कट गया ना। अरे वाह, आज मालूम ना हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कट गया। अरे मैं आपसे पूछ क्या कट गया कि नहीं कटा, क्या जो सवाल क्या ले आता है? मैं नहीं कह रहा, अब आप ही से सुन रहा हूँ मैं आपसे पूछा तो क्या कट गया, उन लोग का पत्ता कि नहीं कटा? अगर पत्ता नहीं कटा या ऐसा कुछ भी कट चुका वैसे तो मुझे तो नहीं पता। अगर देखो मुखालिफत किया तो कट ही गया होगा, क्योंकि इसने नसीम मिल्लत को मुसलमान साबित किया ना मुफ्ती रहमान ने और कलीमी ने भी। चलो कोई भी हो, कलीमी हो या कुछ भी हो, वो भी शरीफ था, वहीं बैठा हुआ था साथ में। चलो ठीक है, वो आपसे कंफर्म नहीं हो रहा इतना दिन से, 1 महीना से तकरीबन बात उससे ज्यादा दिन से हो रही है। अब अभी मुझे कंफर्म ये नहीं कर पाए कि आप उनकी तफसीर क्यों नहीं करते, फिर वजाहत बता देते यार। नहीं, आपसे मैंने कहा कि देवबंदी गवाह है, देवबंदी वकील है, देवबंदी निकाह पढ़ा रहा है। लड़की अगर बरेलवी है तो आपने कहा निकाह नहीं होगा। निकाह बिल्कुल नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और औलाद आपने कहा वलदुज़िना होगी। बिल्कुल, जब निकाह नहीं होगा तो वलदुज़िना। मक्के शरीफ मदीने शरीफ में सैयद हजरात हैं, उनके गवाह वकील देवबंदी बनते हैं, वही निकाह पढ़ाने वाले होते हैं सैयदों के भी। वहाँ आप जाके देखते हैं, और वहाँ के सैयद भी उसी तरह के जिनको लोग वहाबी कहते हैं, इंडिया के लोग। हजरत आप जाकर वहाँ देखते हैं, पूरे सऊदी वाले पूरे वहाबी नहीं है, पूरे दुबई वाले वहाबी नहीं है, ऐसे बरेलवी हमारे यहाँ के खुद उस्ताद जाते हैं वहाँ तरावी पढ़ाते हैं, बरेलवी हज़ार है। हमारे बुजुर्ग मोहद्दिस से कबीर साहब वहाँ जाके ठहरते थे। अरब में कोई अलग से बरेलवी मस्जिद नहीं है हजरत, बरेलवी मस्जिद ने, लेकिन हुजूर आला की जो पैरवी करते हैं ना, हुजूर आला ने जो भी तालीमात दी उनकी पैरवी करते हैं ना। आला हज़रत का मदरसा मस्जिद होना ये बड़ी बात थोड़ी है। कोई आला हज़रत को तो मानना फर्ज है कि नहीं साहब? फर्ज मान आला हजरत की जात को नहीं, आला हजरत की जो है ना, की लफ्ज है ना, हजरत की तालीमात जो है, जो सहाबा किराम से अखज़ किया, वो उसकी बात कर रहा हूं। आला हजरत ने जो लिखा है उसको मानना तो फर्ज है ना साहब? बिल्कुल फर्ज है, नबी की तरह से है ना, नबी की तरह। अब ये वही तो, अब क्या बोलना क्या कहते वो देख मुझे बोल दीजिए ना, आप जो अब घुमा क्या बोल रहे हैं अब? यानी ये है कि जो आला ने लिखा है उसे मानना फर्ज है। हाँ, तो फर्ज का मतलब बता दे रहा हूँ कि आला हज़रत कब्र में शैतान आता है, हजरत ने लिखा, आला हजरत ने। हाँ, आला हज़रत मानना फर्ज है, कब्र में शैतान आता है, बिल्कुल, यानी मानना पड़ेगा कि आता है। तो आप क्या नहीं मानते आप? नहीं, हदीस है, हुजूर ने फरमाया जब रमजान आता है तो शैतानों को जकड़ दिया जाता है। तो ठीक है, शैतान को जकड़ दिया जाता है। रमजान में तो शैतान कैद हो जाता है, अब ये रमजान में कब्र में कैसे जाएगा? हजरत मेरी बात सुनिए, शैतान जब जकड़ कर लिया जाता है, बात सुनिए ना, तो फिर आदमी को शैतान कैसे भटकाता है वो बताइए ना। भटकाता है, रमजान में तो लोग नमाज पढ़ते हैं। अरे यार, और आप शायद क्या आपके गांव में होता होगा पूरे आदमी 24 घंटा मस्जिद में बैठा होगा, सही से ना खाली घूमता होगा, मेरी बात सुनो तो, पेतियाने से आएगा या सराहने से आएगा? हजरत मेरी बात तो सुनो। आप इतने बड़े, मुझे तो लग रहा है जैसे आप ये बात बोले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी इस्तेदलाल करने में काफी कमजोर लग रहे हैं। जैसे कि आप, मैं बोलूँ कि आप देवबंदी क्या कहते हैं वो, ये तो मैं भी मानता हूँ कि शैतान को जकड़ दिया जाता है, लेकिन ये बात नहीं कि आप उसके बाद बच्चे क्या कहते हैं, आदमी पूरे इबादत में कहाँ लगते हैं। रमजान में देखता हूँ कोई आदमी कुछ करते हैं, कुछ आदमी कोई आदमी रोजे नहीं रखते हैं, मज़ा रबिल आलमीन। कोई आदमी यहाँ तक बोलते हैं कि हम रोजा क्यों रखेंगे जब हमारे पास खाने पीने का सामान है। तो उसके बारे में क्या बोलिएगा आप, बताइए तो आप। अच्छा, ये बताइए हजरत कि कभी किसी आलिम ने हिंदुस्तान में, आपने कभी सुना कि किसी आलिम ने कहा कि मैंने शैतान को देखा है? किस आलिम को? नहीं, किसी भी आलिम ने अभी दुनिया में किसी ने दावा किया कि मैंने शैतान को देखा है चलते फिरते? ये हम नहीं, आलिम को नहीं देखे हैं। बहुत आदमी बोले कि हम देखे हैं, बहुत लड़के भी बोले हैं, बहुत लड़के बोले हम देखे हैं क्या कि मैं शैतान को देखा हूँ। क्या हमने तो कसम खा के कह सकता हूँ, पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। असल में मैं नहीं देखा हूँ, मैं तो इसे मैं तो सोचता एक बार मैं देख लूँ, मैं तो कभी देखा नहीं कि होता है कि सच होता है कि नहीं, मैं नहीं देखा। लेकिन बहुत आदमी लड़के लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है भाई,
अरे हमने तो पहली बार ये बात सुना, आज तक तो नहीं सुना किसी से कि साहब किसी ने तो कहा आप मैंने यानी शैतान को देखा है। आपने इसी से इस्तेलाल कर लेकिन किया है आला कि हज़रत कब्र में नहीं कहते जाते। हैं कि कब्र में शैतान आके कहेगा कि मुझे खुदा कह दे, वो शैतान को बिल्कुल। देखेगा, मुर्दा शैतान को मत देखेगा मरने के बाद, बिल्कुल जिंदगी में तो बिल्कुल। कभी नहीं देखा, मरने के बाद देखेगा। हजरत मेरी बात सुनिए। आला हजरत ने जो बता, भी काम, मुनकर नकीर वहाँ मौजूद होंगे, शैतान कहाँ खड़ा हो जाएगा आके साहब? अरे यार वही वाली बात हो जाएगी यार। आप इतनी जगह कहाँ है वो कब्र में कि शैतान भी खड़ा हो जाए वहाँ के? तो फिर आप ये कैसे, आप तो ठीक है, आप ये तो इस टाइम कैसे हो जब आदमी मरता है, जब मरने की बात है तो वहाँ पर शैतान कैसे आ जाता है? नहीं, वो तो मरने तक सबका अकीदा है कि मौत तक रहता है, मौत तक रहता है, रूह निकलने से पहले तक भेगा था वो। अब तो क्या वहाँ पे क्या कहते हैं, फरिश्ते जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ के खारिज रहते हैं क्या? नहीं, वो तो दारुल जज़ा है, कब्र तो दारुल जज़ा है। हजरत वो आप बरज़ख जज़ा का मामला है, और बरज़ख में शैतान को जाने की इजाजत नहीं है। आप देखिए, आप इसकी ताबीज मत कर सकते। आपने बोले कि नहीं, वहाँ भी बरज़ख फरिश्ता है, में यहाँ भी शैतान शैतान है। को जाने की इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है। हजरत मेरी बात सुनिए ना, वो मैं पूछ रहा हूँ, जाने की ना जाने की। आपने बोले कि यहाँ पे एक तरफ शैतान है, एक तरफ फरिश्ता है, तो वहाँ पे उसको जाने की हिम्मत नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पर कैसे आ गया? आप वो बताइए ना। अब ये तो यहाँ खाली करिए। बताइए, आप ये बताइए हम कि दोनों कब्र जगह में मानते हैं। सवाल होगा तेरा रब कौन है, हाँ बिल्कुल। तो वह शैतान कैसे खड़ा हो जाएगा? अब जो देखिए, वहाँ शैतान वो अपनी अकल से दौरा मत कराइए। हमारे जो कायदे जो लिखा है उसकी मानते हैं। कैसे? हम जो किताब लिखे में उसकी मानते हो। ये आपकी थोड़ी सिर्फ बात आला मानते हजरत का अकीदा है, वरना ना साहबा का है, न ताबीन का, न ताबीन का, न आप चारों साहबा को इमामों पढ़े का, ही न कहाँ? औलिया कामिलीन का। आपने किसी का सहाबा अकीदा को नहीं। पढ़े ही कहाँ? आप सहाबा की क्या पढ़े? मतलब और आप मुहद्दिस कबीर से पूछेंगे तो वो भी यही कह देंगे, हाँ ये कमजोर रिवायत है, इस पर अकीदा बनाना जरूरी नहीं है। क्या कमजोर रिवायत बताएंगे, कमजोर रिवायत से साबित किया उन्होंने। हुजूर मोहद्दिस कबीर साहब ने? नहीं, आला हजरत ने। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आप आला हजरत कोई भी लिखे हैं तो कमजोर, आला हजरत के हिसाब से और मुफ्ती मुशाहिद हुसैन और गुफरान सियालवी, अशरफ आसिफ जलाली, मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शहजाद आलम, इलियास कादरी, इनके मुफ्तियों के हिसाब से, मुफ्ती समर, पूरे मक्का शरीफ मदीने शरीफ में 20 मुसलमान नहीं मिलेंगे। पूरे मदीने शरीफ 70 लाख की जितनी भी आबादी है कम बेश, 70 लाख में 1 लाख पे एक आदमी मुसलमान नहीं मिलेगा, इलियास काजी के हिसाब के, इलियास काजी के जो मुफ्ती है ना इनके हिसाब से। चलो देखो, इलियास काजी के नहीं, देखो मैं बताऊं समर के हिसाब से तो पूरे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में 10 मुसलमान नहीं मिलेंगे आपको। खास मेरी बात सुनो ना तो यार, तमाम अहलियान मक्का और मदीना जो भी अभी है, जिन्होंने काबिज किया है यहूदी की ताकत लेकर, अभी भी यहूदी की ताकत पर चल रहा है वो लोग। वो सऊद है, मिसले यहूद है, यानी यहूदियों का औलाद है वो लोग। वो तो अब आले सऊद को भी देख लो, वो सब यहूदियों का औलाद है। हुकूमत वाले अलग हैं, आम अवाम अलग है। तो हजरत क्यों अवाम वहाँ के इमाम को ये खबर नहीं है कि फिलिस्तीन में अवाम मर रही है और वहाँ पे क्या कहते हैं, आप जिहाद का फतवा नहीं दे सकते हैं? वहाँ बोले तो नहीं है, संभल की जामे मस्जिद के ऊपर सर में आने वाला। मेरी बात सुन, यहाँ के मुफ्ती क्या कर रहा है, यहाँ के मुफ्ती क्या कर रहा है? एक मिनट मेरी बात सुनिए। वो केवल जो जिहाद का फतवा देगा उन पे कुफ्र का फतवा लगाएगा वहाँ के इमाम ने। तो ठीक है, ये तो दुनिया भर में मसले होते रहते हैं। नहीं मसला की नहीं, मसला ये यार किबला अव्वल की बात है ना भाई। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि आप उसको कैसा समझ ले। आला हज़रत के खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, वो 40 साल रहे अरब शरीफ में, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, लेकिन किसके पीछे नमाज पढ़ी उन्होंने 40 साल? जुमा किसके पीछे पढ़ा? आप बताओ ना, आपने देखने गए थे क्या? क्या इसका मतलब जुमा नहीं पढ़ा 40 साल? हमको नहीं पता। तो अगर जुमा नहीं पढ़ा तो फिर कुतबे कैसे बन गया? कुतबे वो तो कोई जरूरी है कि वहाँ पे एक भी बरेलवी न हो? बिना जुमा पढ़े कुतबे बन जाएंगे? कुतबे मदीना बनाने की उन्हें क्या जरूरत आ रही है? जब अल्लाह के रसूल वहाँ मौजूद है तो इन्हें कुतबे मदीना क्यों बनाया गया? तो भाई अजीब बात कर रहे हो यार, कुतबे मदीना ये वहाँ के उस दौर के बुजुर्ग बनाए। तो जब आज तक कोई कुतबे मदीना नहीं बना, अल्लाह के रसूल जहाँ मौजूद है वहाँ कौन कुतुब हो जाएगा? हाँ, कौन हो सकता है कुतुब अल्लाह के सामने? तो आप इतने ज्यादा इस्तेलाल क्यों कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग ने बोल दिया तो अब हम देखो, हम हर बात को मानते हैं। देखो हमारे लिए क्या क्या मैं बता देता हूँ, उसको मानता हूँ। एक मिनट बनाया, फिर इब्राहिम साहब ने बनाया उनको। कुरान, हदीस, सहाबा कराम की पैरवी, क्या कहते हैं, हमारे बुजुर्गान दिन और हुज्जत, मैं सबको मानता हूँ। सिर्फ एक नहीं कि मैं सिर्फ हदीस को मानता हूँ, अहले बैत को मानता हूँ, क्या कहते हैं अहले बैत कराम को मानता हूँ, और क्या कहते हैं सबको मानता हूँ, सहाबा को मानता हूँ, लेकिन कियास को नहीं मानता हूँ, न इस्तेदलाल को मानता हूँ। ऐसा नहीं। सबसे मेरा ज्यादा अगर मानना है आपको, हाँ, सबसे ज्यादा अगर चाहना है आपको, हाँ, आपके हिसाब से और नहीं मेरे हिसाब के हिसाब से, अपने हिसाब से तो आला हज़रत को ही मानना पड़ेगा आपको हर बात में।
तो हजरत मैं नहीं, वो जब तो भी मेरा कोई बात करो आप तो यही कहना वजू ऐसे बनाओ, आला हजरत ने ऐसे वजू बनाया, आला हजरत ने ऐसे नहीं नमाज नहीं पढ़ी, नहीं आला हजरत अरे ऐसे कोई खाना अजीब खाते थे, आला हजरत ऐसे नमाज पढ़ते थे, आला हजरत ऐसे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हजरत मेरी बात सुनिए, आला हजरत आला का हजरत हर ऐसे वो पेशाब कदम, करते थे, आला हजरत अरे ऐसे यार फिर सोते अब थे। वहीं चल गए ना। हम्म। मैं बताता हूँ, ये कोई बात आप छोड़िए, आप आदत में पूरे आप आला हजरत अब ऐसे हुक्का पीते थे, आला हजरत ऐसे पान खाते थे। देखो यार क्या है, आप कुछ भी बोलने लगते हो ना, यही मुझे आपकी आदत बहुत बहुत बुरी लगती है। नहीं, हद क्यों रहे हो आप माशाल्लाह आपको मुहक्किक मुझे आदमी, आप आप मुहक्किक रोशन ज़मीर आदमी हो आप। ना आप किसी भी एतबार से मुझे नहीं लगता कि आप आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु को सही मानते होंगे, मुझे नहीं अरे लगता नहीं, है मैं जैसे आप एक बोल रहे बात कह रहा हूँ कि जो लोग इतना वजीफा पढ़ते हैं, ला अरे तगलू फी दीनिकुम, कुरान में ला तगलू फी दीन में गुलू मत करो, तो गुलूब जिसका ना करो तो जितना आला हजरत मर्तबा को। उस हिसाब से मानो। अरे यार देखो देखो मेरी बात सुनिए, अब शिया लोग हजरत अली को मानते हैं तो क्या गलत करते हैं? फिर उन्हें शिया क्यों कहा जाता है? शिया का माना होता जैसे है रज़वी मददगार, लोग लेकिन आला उसको हम हजरत को शिया मान का रहे हैं, बोलते हैं। उसी तरह से हजरत शिया हजरत हजरत अली को मानते हैं, जिस हम तरह तो से शिया रज़वी आला किसको हजरत मानते को हैं, मानते हैं। हमको उसको अहले तशय्युह, हम उसको अहले तशय्युह नहीं कहते हैं, हम अहले राफ़ज़ी कहते हैं, उसको राफ़ज़ी कहते हैं, राफ़ज़ी का माना तो नहीं, धोखेबाज। ये बताओ, हम उसको जैसे हम उसको रज़वी शिया नहीं आला कहते हजरत को मानते हैं, ऐसे शिया हजरत अली को मानते हैं। फर्क कहाँ है? हैं। थोड़ा बहुत ही तो फर्क। तो मैं बता देता हूँ, राफ़ज़ी का आपके अकायद पता है, कुछ अकायद पता है, एक अकायद बता दीजिए आपने नहीं, ये बताओ कि ना, वो पहले हजरत मैं अली बताओ को मेरी मानते बात हैं, हजरत अल्लाह मेरी के बात रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, चलो हयातुन ठीक, नबी मानते हैं कौन राज़वी तो को। जी 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 राफ़ज़ी हयातुन नबी मानते हैं। हाँ, तो फिर ये हजरत क्या कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम को गाली क्यों देते हैं कि नबूवत हजरत अली पे तो आने जो वाले थे, गाली वो देगा जाकर। जब इस्लाम को, तो काफिर है, मुसलमान ही नहीं है। तो अब तक खत्म करो ना मामला, फिर अहले तो वो जो तशय्युह को बीच शिया में में क्यों ला दो। 32 फिरके है ना, कौन सा फिरका गाली देता है, कौन सा ऐसा कहता है, उसको देखा जाएगा। तो ठीक है चलो आप ये बात बताओ, जो सैयदना क्योंकि सिद्दीक़ आला अकबर हजरत ने हजरत तब्दीली शिया को काफिर नहीं कहा है। हजरत मेरी बात सुनी ना, जो कहा है अहले तब्दीली शिया तशय्युह, को काफिर कहा है? मेरी बात सुनो ना, जब मुतलकन बोला जाता है ना तो सब पे एतबार किया जाता है, जब मुतलकन देवबंदी को बोला जाता है तो सब पे एतबार किया जाता है। आपको मुतलकन हम मुक़य्यद पढ़े हैं ना। नहीं, ये बताओ, जब मुतलकन बोलोगे तो अरब वालों को क्या बोलोगे? सबको मैं काफिर बोलोगे? मुतलकन में हाँ बोले कि जो अगर देवबंदी वहाँ पे अगर बोले कि देवबंदी नहीं, वहाँ फिर पे अगर काफिर है। में तो वही शक वाली बात आ गई, मन शक का फी कुफरी व अज़ाबी फ़क़द कफ़र। तो भाई जिन्होंने बात, उनके कुफ्र अज़ाब में शक किया वो काफिर हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप अगर क्यों कह रहे हो? अगर वहाँ के अरब के लोग ऐसे हुए, अगर मत लगाओ, फिर अरब वालों को क्या मानोगे आप? मक्का अरे शरीफ तो शरीफ वालों को? मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मुतलकन वहाँ बोलते के हैं कि वो सैयदों हाफिज को क्या काफिर है, मानोगे? सैयद भी वहाबी हैं वहाँ के, इनके कौन हिसाब से, जो बरेलवी के हिसाब सैयद होगा वो जो सैयद होगा वो इलियास हाफिज कहाँ काजी होगा। के हिसाब से, हजरत मुफ्ती हजरत हजरत समर के हिसाब से वहाँ के तो सैयद वहाबी हैं, मुसलमान नहीं है। हजरत मेरी बात सुनो, मुफ्ती जो सैयद समर, होगा। हबीब अत्तारी, इमरान अत्तारी के हिसाब से वहाँ के सैयद मुसलमान नहीं है। शहजाद अरे तो आलम बात सुन गफरान लो ना यार, न्याज़ी तो ठीक है और ठीक, मुफ्ती मुशाहिद हुसैन के हिसाब से वहाँ के सैयद मुसलमान नहीं है। साहबा तो किराम मेरी की बात वहाँ सुनो ना। औलाद मुसलमान नहीं है। वहाँ के इमाम मुसलमान नहीं है, मुअज्जिन मुसलमान नहीं है वहाँ के। हाँ तो मैं क्या कहते हो, आप तो मेरी कौन बात सुनोगे। मुसलमान है? क्या ये गफरान सियालवी का बाप मुसलमान है? मुशाहिद हुसैन का बाप मुसलमान है? कौन मुसलमान होगा जब अरब में ही अरे मुसलमान तो नहीं मेरी है? बात सुनोगे ना आप, एक तो अजम क्या कहते हो जाहिल बना पर उतर गए हो, नहीं वही मैं हजरत, पूछ रहा ये हूँ आपसे। बताओ, जब मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग ही मुसलमान नहीं होंगे इनकी हाँ नजर में, तो इलियास हाँ काजी के मानने वालों की नजर में, तो फिर कौन मुसलमान होगा? तो मैं बता रहा हूँ ना जहाँ से कि इस्लाम आया वही मुसलमान नहीं, तो फिर कौन तो फिर मुसलमान है? तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ मुसलमान की बात करो, सऊदी में आप कैसे उसको मुसलमान मानते हैं यार आप, अरे तो जो वहाँ रोजा कोई नबी की शराब तरफ। थोड़ी पी जाती है, कोई अरे जिना के अड्डे थोड़ी खोले हैं, वहाँ कोई भजन थोड़ी गाया जाता है, वो कुरान पढ़ते अस्तगफिरुल्लाह हैं, अस्तगफिरुल्लाह नमाज अस्तगफिरुल्लाह। पढ़ते हैं, रोजे रखते अरे हैं, मैं वही ज़कात बता देते रहा हूँ, हैं, अरे भाई हज कम करते से हैं, पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कुरान पढ़ते हैं, भजन थोड़ी पढ़ते हैं सब लोग। तो फिर वहाँ जाकर मंदिर क्यों वो बना दिए। सफेद कुर्ता पजामा नहीं नहीं पहन के नहीं मंदिर तो अभी वहाँ पे बना है, जाकर, अभी बना है, अरे तो भाई, अभी की अरे बात तो है। यार अजीब अरे पागल तो वाली अभी बात की बोल बात है, अभी कयामत की अलामतें पूरी नहीं होंगी। रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है कयामत की अलामतों के बारे में, वो भी तो पूरी होना है ना। कयामत की अलामतें, तो होनी है सोने का पहाड़ भी तो निकलेगा नहरे फरात में से। जी हजरत, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आपने फिर बोले कि वहाँ पे अब क्या मैं आप तो ये बताऊँ। कहोगे सोने का पहाड़ क्यों निकलेगा, क्यों क्यों निकले? अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो नहीं तो नहीं होगा। नहीं मैं वो बोल रहा हूँ ना आपको, आप बोले कि वहाँ डांस नहीं होता, अब भी जाकर अब भी डांस तो हुआ क्या है इंडिया और में, क्या स्टेज पर मंदिर बकायदा इस्लाम में काबा योगा, शरीफ का फोटो लगाया गया। मंदिर इस्लाम में योगा नहीं हुआ? क्या कहाँ? बाकरगंज में सोनिया गांधी नहीं आई? बाकरगंज में जो जामिया नूरिया है वहाँ, तो जामिया मस्जिद में थोड़ी आया है, नहीं जामिया जामिया में नूरिया थोड़ी में तो आया है। आई है ना सोनिया गांधी। अब और मजहर की बात छोड़िए, यहाँ पे जामिया रज़ा की बात करिए। देवबंद में इंदिरा गांधी आई थी 7 साल अरे में। पहले बात सुनो ना यार, देवबंद में जामिया रज़ा मुशायरा की बात हुआ करो था। ना। तो ये तो होता रहता है, दुनिया भर में अरे होता तो है। नहीं होता रहता। आप सऊदी वालों को कितना अच्छा मान रहे हो, आप शायद लगे कि आपका कोई फंडा उंडा आता होगा। आप वही नहीं, ये बताओ कि बताइए नंगी औरत हजरत, को नचवा रहा है, आप पीछे काबा शरीफ का फोटो लगवाए, उसको आप कैसे मुसलमान मान रहे हो? उसके अंदर इतनी गैरत नहीं है कि काबा शरीफ की कितनी इज्जत है, अब कितनी ये देखो, कितना एहतराम करते कारी हैं। वहीद नहीं दुनिया ये के बताओ, पहले सबसे ये बड़े बताओ, मुफस्सिर हैं बरेलवी पहले ये जमात में। बताओ मुफस्सिर कौन। आज़म हिंद कायद वहीद साहब, उनको गुमराह करार दे दिया उलमाए कौंसिल में बैठने से। और जो जामिया दर जा रहा है उसको मुसलमान मान रहा है, जबकि उलमाए कौंसिल जामिया दर एक ही जैसा मामला है, एक ही जैसा मामला है।
उलमा कौंसल वही क्या कहते हैं मौलाना क्या कहते हैं ये जो शाकिर नूरी साहब के उस्ताद है जो। हाँ, मुफस्सिर आजम हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं लोग अपनी जमात में। चलिए ठीक है, अब देखो मुफस्सिर तो बहुत सारे हैं, उनका देखो हर आदमी नहीं, का उनसे एक बड़ा ही कोई मुफस्सिर नहीं है दुनिया में अभी। उन पे इसलिए सिर्फ उसका मामला इसलिए कि वो देवंती बरेली सबको मिलाना चाहता है, सब मिल नहीं सकता है। हुजूर कौन मुफ्ती आजम हिंद उन्हीं का मामला है। उलमा कौंसिल का मतलब बताए क्या है? कारी रहीस साहब। अरे वही कारी सही में आप मैं बता दिया तो अब क्या बताएंगे? मैं जब बोल दिया शाकिर रज़वी को आप क्या मानोगे फिर? अब शाकिर रज़वी साहब पे जब उन्होंने मैं सुना कि हुजूर तारिक ने उनको खिलाफत दी थी और उनको फिर बुलाया लेकिन वो लौटे नहीं, फिर उनका मामला खत्म हो गया। वो भी बोले कि मुबल्लिग ने उसको खारिज कर दिया गया बस। तो फिर इलियास काजी तो उससे बदल जाऊला बदतर है। क्यों उसको बदतर बोल रहे हो आप? नहीं, आप इलियास काजी की क्यों हिमायत कर रहे हो? जबकि शाकिर रज़वी बहुत अच्छा है, इलियास काजी के मुकाबले शाकिर रज़वी साहब बहुत अच्छे हैं। जितने मुरीदीन हैं मुतवस्सिलीन हैं, वो करामतें भी नहीं बनवाते हैं, वो इस तरह की हरकतें भी नहीं करते हैं जैसे इलियास करता है। आपसे अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपसे लाख गुना और आपके करोड़ गुना आपसे अच्छे हैं। तो फिर आप मुहद्दिस कबीर के खिलाफ जा रहा हो? मुहद्दिस कबीर ने रद्द किया है, इलियास काजी ने रद्द किया है, आप अज़हरी मियां के खिलाफ जा रहा हो। हजरत में उनकी रद्द किए हैं, मैं उनकी बात की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि ये देवबंद वालों के पीछे नमाज भी पढ़ लेते हैं, दाऊद इस्लामी वाले ये भी लेते थे, अभी पढ़े नहीं। अज़हरी मैंने ये कहा है कि ये लोग जो है इन्होंने मेरे जलसे के ऊपर बाधा डाली थी, जलसे के ऊपर खुद अज़हरी मैंने बताया था। और ये भी बताया कि इन्होंने मुफ्ती आजम के मुरीद को मारा था, हाफिज फिरासत साहब को शाहजहांपुर में घर में घुस के मारा था। देखो और अज़हरी मियां के जलसे के पोस्टर फाड़े थे जयपुर में 2013 में, यही दाऊद इस्लामी वालों ने। कब बताओ ना आपको? 2013 में जयपुर में। बताओ ना कि फिर झूठा इल्जाम लगाओ, उसका और क्या सजा है ना पता है ना? झूठा इल्जाम लगाओ। कोटा साजिद जड़ा वाला भी अज़हरी मियां के फतवे को नहीं मानता है, वो तो खाली नाम लेता है अज़हरी मियां का, काम करेगा दाऊद इस्लामी वालों का। कौन? ये इदरीस है, साजिद जड़ा कोटा में रहता है। साजिद अजम इस्माही उसने नहीं, साजिद इदरीस है, उसने कहा था कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी हज के दौरान, और मैंने जुमा होटल में पढ़ा था। जुमा होटल में हो जाएगा क्या? जुमा के लिए कितना आदमी का शर्त होना जरूरी है? अरे तो कितनी हो, लेकिन होटल में जुमा हो जाएगा। अरे होटल का अजीब बात करो, होटल क्या जरूरत है इसमें? तो उसने कहा मैंने होटल में जुमा पढ़ा है, इदरीस कोटा ने कहा मैंने होटल में जुमा पढ़ा था। होटल में आप ये बताओ, होटल में जुमा हो जाएगा? मेरी बात सुनो, अगर नहीं, क्या कमरे में जुमा हो जाएगा? होटल में, बस में जुमा हो जाएगा, ट्रेन में जुमा हो जाएगा, हवाई जहाज में जुमा हो जाएगा, समंदर में जुमा हो जाएगा, दरिया में जुमा, ऐसे हर कहीं जुमा हो जाएगा क्या? अरे तो पहले बात तो सुन लो। अगर जुमे की जो शराइत है कुरान में, अज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जुमा शाइर इस्लाम से। जी। तो फिर क्या हर कहीं जुमा हो जाएगा? तो ठीक है, वो बताइए कि अगर आप नहीं, जो उसने कहा कि मैंने जुमा भी पढ़ा और जोहर की नमाज भी पढ़ी, एहतियातन जोहर भी पढ़ी। हज है, आप हज किए हैं आप? तो आप बताओ, इदरीस जो कोटा वाला ये काफिर हुआ कि नहीं हुआ? ये कह के मैंने जुमा होटल में पढ़ा, जुमे की बेहुरमती की कि नहीं, काफिर हुआ कि नहीं जुमे की बेहुरमती करके? तो यानी कि जो जुम्मा अगर जुमे की बेहुरमती कर रहा है, कह रहा है कि मैंने होटल में जुमा पढ़ लिया, तो काफिर नहीं हुए? यानी कि जो आदमी होटल में जुमा पढ़े या कोई रेस्टोरेंट में काफिर हो जाएगा। ये माना वहाँ के लोगों को, इमामों को मुसलमान नहीं माना जिसने? बिल्कुल नहीं मानते, हम खुद ही नहीं वहाँ के इमाम को खुद ही मुसलमान नहीं मानते। हमसे पूछिए ना, आप उसकी बात दूर करें, मुझसे तो कम से कम पूछ लीजिए। जब आप इमाम को मुसलमान नहीं मानते तो जितने हाजी नमाज पढ़े हैं क्या मानते हो? बिल्कुल हम तो उनकी नमाज नहीं होगी। तो वो हुए क्या, काफिर हुए मुसलमान? अजीब यार, मैं देवबंदी के पीछे पढ़ लूंगा तो थोड़ी मैं काफिर हो जाऊंगा। वो किसने बोल दिया कि देवबंदी के पीछे पढ़ने से नमाज नहीं हुई? तो वो जो हाजी दोहरा ही नहीं रहे नमाज, हम नहीं दोहरा रहा नमाज, वो क्या हुए, काफिर हुए क्या? नहीं, अजीब यही बात होती तो अगर ठीक है, अगर मैं गलत नमाज पढ़ देता तो सजदा सौ नहीं, जैसे इदरीस ने कहा था कि जिसने नमाज पढ़ी नमाज कज़ा हो गई। मैं फोन काट दूंगा। नहीं, अभी मत काट अभी मत काटो, तो पूरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। जिसने नमाजें पढ़ी है 200 नमाजें दोहरा है, तो क्या इदरीस के फतवे से सब काफिर हो गए जो नमाजें नहीं दोहराएंगे? अब वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं। जितने नमाजियों ने नमाज पढ़ी, हाजियों ने एक ने भी नमाज नहीं दोहराई, न केथुन वालों ने दोहराई, न जयपुर वालों ने दोहराई। अब इदरीस के फतवे से तो काफिर हो गए कि नहीं वो हाजी? कौन ये इदरीस है? ये इदरीस रामपुर का रहने वाला सुलह कुंडी है, लेकिन कट्टर सुन्नी बना हुआ है कोटा में। तो ठीक है, वो अब इसके भाइयों ने देवबंदी के लिए दुआएं मगफिरत की, अहमद पटेल गुजरात वाले के लिए कुरान ख़वानी की, इसके भाइयों ने वहाँ पर कोटा में। वो बरेलवी होगा नहीं, मुसलमान मानता है जी, अपने भाइयों को मुसलमान मानता है, सोचता हमारे भाई। दलील क्यों मानते हैं आप? उसको दलील क्यों बना रहे हैं? अगर दूसरा करते तो उसे काफिर बना देता। ये अहमद पटेल की दुआ करता है, कुरान ख़वानी करता कोटा में, तो काफिर बना देता है इदरीस। अब इसके भाइयों ने दुआ की वहाँ पर कुरान ख़वानी की, तो उसको ये मुसलमान मान रहा है। जिसने कोटा में दुआ की, अहमद पटेल जो गुजरात का लीडर था कांग्रेस का, उसके लिए कुरान ख़वानी हुई गुजरात वहाँ पर कोटा में। फर्स्ट यही रहेगा, मेरी बात सुन लो। हम सबकी बात नहीं सुनते, आप कभी इदरीस पे जा रहे हो, इस पे जा रहे हो। आप बहुत बड़े काबिल आलिम बन रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अभी आपके उस्ताद कौन कौन है? मुफ्ती शमशाद साहब हैं,
हाँ हमारे उस्ताद है, वो हमारे फिक के उस्ताद है। और कौन से आले मुस्तफा साहब का तो इंतकाल हो गया। रहमतुल्लाह और कौन पढ़ाता अभी आपको? हमको एक हो गया कि मुफ्ती शमशाद से बड़ी में हो गया, मौलाना अब्दुल रहमान साहब हो गए। हाँ। और क्या कहते हैं, बस यही हो गया। और बाकी तो ये सब है जो बाद में होंगे, ये सब पुराने। मुहद्दिस से कभी नहीं पढ़ाते भी आपको? नहीं, अभी 2 साल बाकी, फजीलत वाले को सिर्फ पढ़ाते हूँ हजरत। तो आप उनसे ही पढ़ना। वो हजरत एक मिनट दुनिया के बड़े आलिम है अभी हदीस शरीफ के अंदर। हजरत मैं वही पूछ रहा था क्या हम हर आदमी मेरा हजरत से सलाम बोलना, मैंने कई बार बात की हजरत से, मुहद्दिस से। हजरत आप तो वही, आप उनसे बात भी कर रहे हैं, फिर उनकी पैरवी भी नहीं कर रहे हैं। मैं कैसे समझ में कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं? मैं नबी की तरह से थोड़ी मानूंगा उनको, किसी को नहीं मानूंगा नबी की तरह से। अरे यार जी यार, वो तो आप वही वाली बात है कि हुजूर कबीर हो, थानवी, कोई भी हो, देवबंद, अरे यार बरेली का कोई भी आलिम, हम नबी की तरह से उनकी बात थोड़ी मानेंगे। आप कहाँ बोले उसको नबी के दर्जे में कहाँ वो उतारने को बोलते हो? जो आप जैसे कि मुफ्ती शमशाद साहब ने कहा था कि जो मसले की हालत को नहीं मानेगा मुझे मुसलमान नहीं मानेंगे, तो मुफ्ती शमशाद साहब नबी की तरह से मनवाना चाह रहे थे हालत को। अरे यार आप अजीब तालील करो, उसका मतलब उनका मतलब क्या है? शहजाद ने झांसी में आकर इमाम अहले सुन्नत सैयद सिद्दीन हैदर मियां साहब की इमाम अहले सुन्नत वो कौन है? वो इमाम अहले सुन्नत है जो ये पढ़वा सकते हैं कि यजीद के बाप का पर्दा उठाया जाएगा, उसकी मौजूदगी में खुदा की शक्ल में अली को बुलाया जाएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके आप क्या पढ़वाया? आपने ये अभी आपके व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूं? आप इलियास काजी की तो बुराई नहीं कर रहे, नहीं आप ये बताओ, आप उसको इमाम अहले सुन्नत कैसे बोल दिए? उनको इमाम अहले सुन्नत कैसे बोल दिया आप? उनको इमाम अहले सुन्नत, उसके पास इतना इल्म भी नहीं कि वो बंदा वहाँ पर मुनाज़रा करता। उनको इतना डर था कि मैं यहाँ पर आलिम है साहब। अरे वो आलिम तो वो मुनाज़रा करना चाहिए ना, वो कहला जिहोला की तरह भाग गए। वो ताजदार अहले सुन्नत ने सोचा होगा। अरे वो ताजदार फाजदार कुछ भी नहीं वो। अरे सैयद है साहब। हम एक बतौर उनका अगर पूरी बात पता चले तो उनको हम सैयद से खारिज कर देंगे। क्या अगर कुछ बात पता चल जाएगा तो अभी मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। हम जितना हम अपने बुजुर्गों से पढ़े हैं जिनके अंदर जो गुलजार मियां ने ये कहा कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, वो तो मुसलमान सुन्नी है आपकी नजर में, सैयद सिद्दीन हैदर मियां सुन्नी नहीं है, सुन्नी मुसलमान नहीं है आपकी नजर में। जुब्बा पे नाज होना और गुलजार मियां कह रहे हैं कि मुझे तो आला हजरत पे नाज है, हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं, मुझे मुफ्ती आलम पे नाज है, जुब्बे पर नाज नहीं है। ये कहा मुस्तफा साहब पर नाज है, मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज है। कितनी बड़ी तौहीन करना है हजरत, ये तौहीन है। और क्या है, और क्या है? ठीक है, मैं आप वही बता रहा हूँ। तौहीन नहीं तो क्या तारीफ है? ये क्या तारीफ है कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे मुस्तफा साहब पे नाज है जिन्होंने मुफ्ती आम के खलीफा को काफिर करार दिया, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। अरे यार तो मैं खुद ही काफिर मानता हूँ। जो हमारे कायदे ने लगाया तो मैं खुद काफिर मानता हूँ। हमारे कायदे इतने बेवकूफ नहीं है। और तो काफिर नहीं मानते ना, इदरीस भी तो गनी मियां का मुरीद है, वो काफिर नहीं मानते मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को। इदरीस जो रामपुर कोटा में है इदरीस। अरे यार क्या कोटा उटा पहाड़ बार बात ले जा रहे हैं? हम वही पूछे कि जो आदमी है कि तो ठीक है बताओ ने क्या नामूसे मौलाई कायनात, जो मौलाई कायनात का जो क्या कहते कारनामा उस पे हुजूर आले ने पहरा दिया है, इसलिए वो उस पे नाज कर रहे हैं। देखो साहब आप बहुत काबिल शख्सियत हैं। नहीं आप उस पे चलो आप क्या फतवा लगा वही बता रहे हो। आप उस पे क्या फतवा लगा हुआ है? यार उनके पास इतना भी मैं समझता हूँ, उनके पास उतना भी अकल नहीं कुछ या अल्लाह के बारे में क्या। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे हम कब्र में जाएंगे तो मरने से पहले मैं ये तैयारी कर लूं, जैसे मरने के पहले मैं तैयारी कर लूं कि मैं कब्र में हालत के बारे में क्या जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं ये पढ़ लिया, ये कब्र में हालत के बारे में सवाल होगा कि नहीं होगा? मैं इस पे मुत्तफिक हूँ। पीर साहब ने कहा है कि कब्र में मसले के हालत का सवाल होगा। एक पीर साहब ने कहा, मशहूर पीर है वो। मसले के आला हज़रत मतलब क्या है? हाँ तो खबर में सवाल होगा ना मसले की हालत का। मसले की हालत का सवाल नहीं होगा। ये तीन सवाल इसमें होना है, मसले की हालत को कौन ऐड कर दिया? वो आदू फादू आप जिसके सुनते हैं वो खत्म, उसको हम दलील नहीं मानते। आप ये बताइए अगर कोई पीर ऐसा कह रहा है कि खबर में मसले की हालत का सवाल होगा, क्या करोगे इसको? तो देखो वो कानून मैं हुक्म क्या लगाऊंगा? जब मैं हुक्म में लगाऊंगा इस पे, मैं उनको पूछूंगा उसके बाद हुक्म लगाऊंगा। पहले ये बताऊं नहीं, ये अगर कोई पीर कहता है कि खबर में मसले की हालत का सवाल होगा तो क्या अरे पीर की बात मानी जाए क्या नहीं मानी जाए? सवाल के जवाब दो भाई, सवाल के जवाब। अल्लाह ताला का ये बताओ, एक पीर साहब ने कहा कि खबर में मसले की हालत का सवाल, फिर वो सैयद कैसे रहे कि जो मौलाई कायनात के इतने गुलूब में आ गए हैं, जो मौलाई कायनात को अहले सुन्नत सैयद सिद्दीन हैदर मियां के तो इतने खिलाफ बोला और गुलजार मियां की तारीफ में हो कि उन्होंने सही कहा कि हजरत अली के जुब्बे पर नाज। मेरी हजरत वही बताऊं कि अल्लाह ताला के इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, लगभग याफ्तार के नारे लगवाए। इलियास काजी ने अपने मिलादनामा पढ़वाया। इलियास काजी ने कहा साहब-ए-किराम मुजद्दिद नहीं थे। इलियास काजी ने कहा कि
वो से आदम भी मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद बिल्कुल नहीं हूँ। मुजद्दिद इलियास नहीं थे, काजी ने अल्लाह के मुजद्दिद रसूल को नहीं थे, मीठे मीठे रसूल मुजद्दिद कहलवाया। नहीं थे, मुजद्दिद इलियास नहीं थे, काजी आप ने मुजद्दिद मदीने को। शरीफ का मजाक बनाया। इलियास जी जी, काजी ने ख्वाब लिखा सफर 31 में कि अल्लाह के रसूल खड़े हो, इलियास काजी बैठा है। सफर 27 लेकिन में लिखा जो भी इसके इस्तेमाल ये में आया आपको लांडी में मिर्ची हुआ लग गई, सबकी मिर्ची लग बख्शिश हो गई गई। आपको। और हाँ, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं, उसको तो आप कट्टर सुन्नी मुसलमान मान रहे हो और अल्लामा ताहिर काजी को काफिर यार, मानोगे। अरे यार, और जो है कि इमाम अहले सुन्नत सैयद सित्ते नजरिया को आप गुमराह मानोगे। उसको अस्तगफिरुल्लाह, सच्ची कैसा आपने ये मेरी बात इंसाफ सुनो, करूँ साहब, उसको इंसाफ ये ऐसा मेरी बात काम नहीं सुनो। चले।